Hi everyone, welcome to Touch the Sky with TTS Coaching. Today I'm talking on a very interesting topic which is now quite in vogue, which is digital marketing, right? So we are in a digital world. We all know a lot of businesses have gone digital, and almost every business has to have some kind of a strategy to market their product or their service using the digital platforms. But having said that, is it really the best way to go about doing it? Can we just say that, hey, you know what, the entire world has gone digital, so I want to do digital marketing? Is there any logic? Are there any thought processes or steps that one needs to follow? Let me share a presentation that I've put together, and that'll probably tell you in terms of what we can actually be doing in order to make a little more sense and follow a more sensible strategy when it comes to digital marketing. And I have provocatively named the topic as why digital marketing doesn't always work. And the key word here is always. I mean, digital marketing is quite successful, but it doesn't always work. Let's see why and what happens. So, the first thing, when I have spoken to a lot of my clients and I've spoken to some of the other people in the market, I hear things like, you know what, I've spent a lot of money on digital marketing, but there are no returns. I don't know why what my agency is doing. They keep saying SEO, SCM, and words like that, and it doesn't make sense to me. So they use a lot of jargons. I have a digital wallet wherein I put some money, but it gets empty in no time. The leads that I end up getting are of poor quality. I am into B2B business. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट फॉर मी। B2C में तो समझ में आता है कि भाई किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगा वो जाके परचेस कर लेंगे। B2B वैसा नहीं होता। So these are some of the voice of customers that I have heard in the market. Let me try to address all of these and say that look, these don't necessarily have to be the case. They don't have to be inhibitors in actually having a digital marketing strategy. So let's first begin with why all of these problems happen for companies who decided to use digital marketing as part of their strategy. कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं पैसा डाल रहा हूं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आती है? किसी किसी को सक्सेस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो इसका कारण क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। बट बिफोर दैट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। स्ट्रेटेजी क्या होती है इनकी, ये काम कैसे करता है? तो हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है कि यू आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप। आपके कस्टमर कौन है, किनको टारगेट करना है? डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो हैज टू टारगेट समवन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म टू यूज? और बहुत सारे हैं। यू हैव लिंक्डइन, यू हैव फेसबुक, इंस्टा, रेडिट। देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट आर देयर, जहां पे you have strategies which are paid marketing, there are organic strategies, so on and so forth. So ये प्लेटफॉर्म कौन सा है जो हमारे बिजनेस के लिए सही है? नेक्स्ट, ठीक है, अब प्लेटफॉर्म हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। फॉर एग्जांपल, चलो फेसबुक हम यूज करेंगे या लिंक्डइन यूज करेंगे। अब उस पे कंटेंट डालना है, तो हम कंटेंट जब डालेंगे तो हमारी टारगेट ग्रुप जो है वो इस कंटेंट को देखेगी। दे आर गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड बाय दिस कंटेंट, और अगर उनको ठीक लगा, इफ दे फाइंड इट वैल्यूएबल व्हाट इज देयर, देन दे आर रिक्वायर्ड टू टेक डिजायर्ड एक्शन। और अगर एक्शन लेते हैं, कंटेंट देख के अगर उनको सही लगा और एक्शन लेते हैं, देन दैट लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ। फिर अल्टीमेटली फिर से ये साइकिल स्टार्ट होता है कि अब कौन सा हमारा टारगेट ग्रुप है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, क्या कंटेंट होगा और क्या रिक्वायर्ड है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बेसिक, मैंने सिंपलिस्टिक टर्म्स में लिखा है। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सिंपल में मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये है कि कौन मेरा कस्टमर है, उसको कहाँ पे टारगेट करना है, कौन सा कंटेंट हम डालेंगे ताकि वो एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा तो हमारी बिजनेस बढ़ेगी। बट इज इट एज सिंपल एज दैट? Well, it is very powerful, digital marketing. There is no doubt about that. Why is it powerful? Number one, the reach of digital marketing. You're able to reach so many people, and you're also able to reach the right kind of people. So targeting आप कर पाते हैं। वैसे तो टेलीविजन एड, रेडियो एड्स, या फिर आपने बैनर एड्स या होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे, उसमें भी रीच है, बहुत सारे लोगों को जाता है, लेकिन वो टारगेटेड नहीं होता, वो इट गोज अप टू एवरीवन। नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन। आप है ना, डिजिटल मार्केटिंग के जो स्ट्रेटजीज है या आप एड्स या जो भी करते हो, इट इज पॉसिबल टू पर्सनलाइज इट। यानी जो आदमी
या औरत वो देख रही है, वो पढ़ रहा है आपका जो डिजिटल मार्केटिंग एड या आउटरीच है, उसे पर्सनलाइज किया जा सकता है कि आदमियों को एक तरीके का ऐड दिखेगा, औरतों को दूसरा तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से हम पर्सनलाइज कर सकते हैं ताकि वो जो सामने कस्टमर है उसके साथ वो एक तरीके से रेजोनेट करे, कि उसके दिल को छू जाए। ठीक है। तीसरी जो चीज है विच मेक्स इट वेरी पावरफुल इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। मैंने पहले आपको न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स वगैरह के बारे में बताया था। तो आप जानते हैं जब होर्डिंग लगती है तो काफी महंगी है, या फिर न्यूज़पेपर ऐड भी काफी महंगा है। लेकिन शायद 90-95% कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको ये ऐड दिखाई दे रहा है, जो आपके कस्टमर है ही नहीं आपके प्रोडक्ट के। तो भी खर्चा तो आप पूरे ऐड का कर रहे हो, पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं, लेकिन खर्चा आपको पूरे करना। In digital marketing, that's not how it works. You have pay per click kind of model. So आपके पैसे तभी कटेंगे या आप पैसे तभी भरोगे अगर किसी ने आपका एड या कंटेंट देख के उस पर इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया, जैसे कि क्लिक किया है या लर्न मोर या ऐसा कुछ किया है, तभी जाके आपको उस पर खर्चा लगेगा, वरना नहीं। सो इन अदर वर्ड्स का कॉस्ट आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है। चौथा पॉइंट है एक्शन एनेबलमेंट। जैसे कि आप देख लीजिए, टेलीविजन एड है या होर्डिंग्स वाले एड्स हैं जो पुराने तरीके हैं मार्केटिंग करने के, उसमें अगर आपने देखा है तो आप इमीडिएटली एक्शन ले नहीं पाते हो, है ना। आपने ऐड देख लिया तो ठीक है, अब जब मौका मिलेंगे दुकान में जाएंगे तो ये प्रोडक्ट हम खरीदेंगे। तो ये उस तरीके से चलता है, लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है। यू कैन एक्चुअली लिटरली क्लिक, इट विल टेक यू टू अ साइट, यू कैन बाय इट राइट देन एंड देयर, और यू वट एवर अदर एक्शन यू वांट देम टू टेक, यू वांट देम टू फिल अ फॉर्म, आप वहीं पे फॉर्म भरा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो इंक्वायरी डाले, आप इंक्वायरी वहीं पे फॉर्म डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्शन एनेबलमेंट जो है ये बहुत इजी हो जाता है डिजिटल में। दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी पावरफुल कंपेयर्ड विद सम ऑफ द अदर ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ मार्केटिंग। तो अगर इतना पावरफुल है तो फिर फेल क्यों होता है? ओके, सो व्हाट रियली इज द प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नंबर वन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटियर्स ऐसे होते हैं जिनकी वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटेजी है। यानी वो जो भी हो वो यही कहेंगे कि चलो एसईओ करते हैं, एससीएम करते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से हम, उनकी स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजीज होती है। आप जो भी बिजनेस ले जाओ उनके पास में, आपकी जो भी कंपनी हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, तो वो इमीडिएटली उनकी स्ट्रेटेजी वही होती है कि हम ये करते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी किया है और ये स्ट्रेटेजी है, यही काम करती है। तो वो इंडस्ट्री नहीं देखते, वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर। अब अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग बिहेवियर है। जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग उनकी होती है या जिस तरीके से वो देखते हैं, अलग अलग। जैसे अभी आपकी प्रोडक्ट अगर गारमेंट्स है विच इज टारगेटेड टुवर्ड्स विमेन, दैट विल हैव अ सर्टेन बिहेवियर। द विमेन हु सी द एड विल रिस्पॉन्ड टू इट इन अ सर्टेन वे। लेकिन आपकी एड अगर ऐसी है, लेट मी टेक अनदर सिंपल वन, इफ इट इज टॉयज दैट आर मेंट फॉर चिल्ड्रन, तो उनका बिहेवियर बहुत अलग होता है। अगर उन्होंने वो वाली एड देखी है, वो खुद तो पैसा नहीं डाल सकते, तो उनका रिस्पॉन्स अलग होता है, राइट। एंड फाइनली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये बहुत डिफिकल्ट होता है और अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बताऊं, मैंने अभी जो एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक लेडी ने गारमेंट की एड देखी है ऑनलाइन और उनको अच्छा लगा, उनको दिल किया कि ये परचेज करना है, इट्स क्वाइट लाइकली दैट शी विल गो क्लिक एंड use her card and make a purchase. Or if it's a child who has liked the toy, द डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफरेंट। वो जाके अपने मम्मी को बोलेगा या पापा को बोलेगा, उनका सर खाएगा, वो मना करेंगे, फिर वो रोएगा, उनको कन्विंस करेगा, तब जाके वो अपना ठीक है कार्ड स्वाइप करेंगे और परचेज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है हर प्रोडक्ट का अलग होता है। अभी तो मैंने बहुत सिंपल वाले लिए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर है, मान लीजिए आपको कोई डीजल जनरेटर खरीदना है या फिर बॉल बेरिंग्स खरीदने हैं, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत अलग है। जैसे कि पहले मान लीजिए परचेस मैनेजर इम्प्रेस हो गया, फिर उसे R&D को दिखा के टेस्टिंग करना पड़ेगा, फिर उसे अपना प्रोजेक्ट हेड को वो दिखाना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट हेड का ओके आएगा, फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आएगा, फाइनल प्राइस नेगोशिएशन होगा, फिर फाइनलाइज होगा। तो ये काफी लंबा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। तो हर एक का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग होता है, इट इज डिफरेंट, and therefore you cannot have a one size fits all strategy, right? Next, what is the secret sauce for success then in that case?
The secret sauce that you have for success is uh, very simple. If you need to be successful, well, the first thing you need is technology, which is digital marketing as a platform. But technology only is not enough. And that is the point that I'm trying to make for so long. कि टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके साथ अगर आप साइकोलॉजी ऐड नहीं करते, बाय दैट आई मीन द कस्टमर साइकोलॉजी, कस्टमर किस तरीके से सोचता है, वो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसका दिल कैसे काम करता है और दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, हम सबको लगता है कि अगर दिमाग को पसंद आ जाए प्रोडक्ट या सर्विस तो लोग खरीदते हैं। नहीं जी, ज्यादातर प्रोडक्ट्स दिल को छू जाना चाहिए, दिल को पसंद होना चाहिए। इट हैज टू अपील टू बोथ द माइंड एंड द हार्ट, एंड इट इज ओनली देन दैट you get success in any sales profession, and especially so in digital marketing. So if you do not have a combination of technology and psychology, if you do not have a combination of heart and mind, if you do not have a combination of logic and emotion, your strategy is likely to fail. And that is the reason why I thought of doing this topic, that when you're working with a digital partner, make sure that these elements are all part of your strategy. Finally, a few quick tips on what the attributes of the right partner is. आप किसी डिजिटल पार्टनर के साथ काम कर रहे हो तो क्या होनी चाहिए उनमें? नंबर वन, ये जरूरी है कि उनको इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर उन्होंने उस इंडस्ट्री में काम नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ दे आर विलिंग टू टेक टाइम आउट एंड इन्वेस्ट एंड डू सम रिसर्च एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, आई थिंक दिस इज अ राइट पार्टनर, कि वो मेहनत कर रहा है आपकी इंडस्ट्री समझने में। सिमिलरली बाइंग बिहेवियर उनको समझना जरूरी है आपके इंडस्ट्री का, कि क्या जिसने एड देखा है वही खरीदेगा, क्या उनको जो एड देख रहा है वो अलग है, जो डिसीजन लेता है वो अलग है, क्या डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और पूरा प्रोसेस है। तो ये जानना जरूरी है, तभी आपकी स्ट्रेटेजी सही बन सकती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Okay, fourth attribute I really like in all the digital partners I have worked with is honesty. In other words, if they are honest enough to tell you that मैं आपकी इंडस्ट्री जानता नहीं, but I will spend some time, I will take some time, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी करके आपकी इंडस्ट्री, लेट मी कम बैक टू यू। If someone is being this honest, I think that's a great attribute. I'm always worried when the digital marketer acts super confident and says, मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा. So he's not tried to understand you, but he knows what has to be done. ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है कि उनको रास्ता पता नहीं है, लेकिन वो आगे चल पड़े हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे हमको कुछ पता नहीं. So that's not a great attitude to have. So honesty is critical. लर्निंग एटीट्यूड, मैंने अभी बताया कि व्हेन समवन सेज कि मैं सीखना चाहता हूं, मैं मुझे 2 दिन दीजिए या 1 हफ्ता दीजिए, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एटीट्यूड दैट यू नीड टू हैव. एंड फाइनली क्लियर कम्युनिकेशन. अगर आपका डिजिटल मार्केटियर ऐसा है जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करता है, एसईओ, एसईएम, आईबॉल, ये वो वगैरह वगैरह, जो आपको थोड़ा सा बाउंसर जाता है, so then maybe that's not the right partner. It always helps to have a partner जो बहुत सिंपल, जिन्होंने आपको समझा है और आपके हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है. He has gone to your level, understood the language you understand, and has communicating in that language. I think that's very, very important in the right partner. Uh, that's it from me for this session. I hope you found that useful. I think it's critical to know the right partner and what kind of partner will actually make it happen. I hope you find this useful. And guys, wish you all the success in growing your business using digital strategy. I put my coordinates in the message box. Please do like, share, and comment this video with people who you think will benefit from this. Cheers. Till the next video, let me catch up with you. Cheers. Bye bye.